Assalamu alaikum students. I'm here, Mrs. Bushra Mushtaq, PG Psychiatric Nursing, with part 2 video of the previous lecture, that is personality disorders. As I have already discussed about the various clusters included in the personality disorder, and I have discussed about the paranoid personality disorder, and today I will be discussing about the schizoid personality disorder, schizotypal personality disorder, and antisocial personality disorder. Coming to the first type, that is the schizoid personality disorder. Here the picture can be depicted that the schizoid personality person is a little different from rest of the group, or he stays away from rest of the group. Likewise, the main characteristic feature of the schizoid personality disorder persons is primarily by the inability to form the personal relationships. That means this schizoid personality disorder person उसको वो नहीं कर पाता है personal relationships form, yeah, he is not able to respond to the anyone, to any person in any meaningful way, right? And moreover, this schizoid personality person is socially withdrawn. He is profound, he has the profound defect, or we can say the inability to form the good relationship towards the other. तो उसकी वजह से वो सोशली विड्रॉवन हो जाता है, और ये इसकी खासियत ही होती है. दीज इंडिविजुअल्स दे डिस्प्ले द लाइफ लॉन्ग पैटर्न ऑफ द सोशल विड्रॉवल, एंड दे आर वेरी मच, जब वो सोशली विड्रॉन होंगे, एंड दे आर वेरी मच डिसकम्फर्टेबल टू हैव द गुड ह्यूमन इंटरेक्शन. अच्छे से इंटरेक्ट भी नहीं कर पाते हैं वो इंडिविजुअल्स के साथ. They are not having the good this interaction pattern with other, and this is schizoid personality is seen more in men as compared to the women. Nextly, how this schizoid personality looks like. What are the clinical features of this schizoid personality disorder persons? They are markedly preference to do the things alone. I already told you about the social withdrawal, कि इनमें social withdrawal होता है, तो ये अच्छे से नहीं कर पाते हैं group work. They tend to remain isolated and they do those things जो इनको मतलब अकेले करना पसंद ही रहता है. Not in the group work, they are not feasible in the group work sessions. These personality disorders, they have constricted emotions as they cannot show their emotions clearly to the any individual. अच्छे से नहीं उनके साथ interact कर पाते, जिसकी वजह से उनके जो emotions है, whatever they feel, वो constricted ही रहते हैं. They are obviously humorless and aloof, totally have no feelings, no emotions towards the others feelings. They feel very much cold or distant. मतलब उनको बिल्कुल भी अच्छे से वो क्या इसको बोलते हैं, फील नहीं कर पाते हैं दूसरों की फीलिंग्स. वो हो जाता है इनमें. एंड मोर ओवर ये ऐसा भी होता है, वो सोशल आइसोलेशन इसलिए भी करते होंगे बिकॉज दे आर ए लिटिल बिट सेंसिटिव टू द फीलिंग्स ऑफ रिजेक्शन. को लगता है वो रिजेक्ट हो जाएंगे इन एनी ग्रुप और क्रिटिसिज्म आ जाएगा, जिसकी वजह से वो पहले ही शायद सोशली विड्रॉवन रहते हैं या आइसोलेशन में ही रहते हैं. उनको ज़्यादातर अच्छा लगता है आइसोलेशन में ही रहना. They tend to work very much in the isolation and unsociable होते हैं. वो ज़्यादातर emotional ties भी नहीं बना पाते हैं ये दूसरे के साथ. They have deficient motivation because to work in the groups need the high sort of motivation. So when they remain alone, when they remain isolated, they have this deficient motivation. They lack interests and hobbies.
they have no apparent desire to pursue the new relationships or to मतलब अच्छे से relationships में invest करना, energy को invest करना to pursue the new relationships. They are not interested, apparently interested in those issues, and they prefer those jobs which do not involve dealing with the people. They tend to remain in the isolation, they tend to remain in this isolated, so they do not work in the groups. And he always what does he do, he works below his potentials. जितना उसमें potential होता है work करने का to show his caliber, जो वो क्या इसको बोलते हैं group में दिखा सकता है, but he does not work to the mark in that case, तो वो below potential ही work करेगा. सो बट इन दैट केस जब वो आइसोलेशन में काम करता है तो उसकी क्रिएटिविटी शायद बाहर आ जाती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी सी कि माइंड में नए नए आइडियाज़ बिकॉज ऑफ द ये आ जाते हैं, बिकॉज ऑफ द आइसोलेशन क्रिएटिविटी आ जाती है, तो उस वजह से वो कुछ हद तक क्रिएटिव भी रहते हैं. क्या इसको बोलते हैं these people, because they tend to remain this very much what is called as isolated, right? Moreover, शाई होते हैं, शायद शाइनेस की वजह से ही वो ग्रुपिज्म में नहीं आते हैं. दे डू नॉट वर्क इन द ग्रुप्स, दे वर्क इन आइसोलेशन. एंक्शियस पर्सनस होते हैं या अनईजी हो जाते हैं टू वर्क इन द गैदरिंग्स. सो दीज सॉर्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर इनबिल्ट इन द शीज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पर्सन्स. देयर बिहेवियर एंड देयर कन्वर्सेशन, जब भी वो कन्वर्सेशन करते हैं या देयर बिहेवियर एग्जिबिट अ लिटिल और नो स्पॉन्टेनिटी. या तो बिल्कुल भी उनके साथ बात करोगे आप, वो आपको जवाब नहीं देंगे, या थोड़ी देर के बाद थिंकिंग एंड ऑल दैट, उस पास के बाद वो आपको रिप्लाई कर सकते हैं. अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी अच्छे से आपको रिप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है. they are very light hearted, they in a manner they will act in a light hearted manner way. They do not take the things very seriously, बिल्कुल भी नहीं लेंगे वो seriously things. और मैंने आपको already बोला कि वो अपनी energy भी enormous energy waste भी नहीं करेंगे in the growing or developing the new relationships. ऐसे होते हैं ये शिज़ॉइड personality disorder persons. And they are unable to experience the pleasure in any sort of activities because they are not interested in those activities, and so they do not seek the pleasure. अच्छा भी नहीं लगता है उनको, मज़ा भी नहीं करते हैं, because we enjoy when we do the things, but in these persons it is seen that they do not experience any sort of pleasure. Now coming to the predisposing factor of the शिज़ॉइड personality disorder persons, पहले ही जब बहुत सारी researches हुई, although the role of this hereditary in this etiology of the शिज़ॉइड personality disorder is not clear, it is very much unclear. And but what is जो feature इनका ये introversion का feature एक होता है, क्योंकि ये अपने तक ही सीमित रखते हैं सब कुछ, they do not show to the outer world their feelings. So ये this introversion appears to be highly inheritable characteristic. तो ये इसका लिंक आ जाता है हेरिडिटी से, बट द होल शिज़ॉइड पर्सनैलिटी का अभी तक कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं देखा गया है. It's very much unclear to have the direct link with the what is called as heredity, right? And moreover अगर हम psychosocially के हिसाब से जाएंगे तो जो development of शिज़ॉइड personality है, it is probably influenced by early interaction patterns कि बचपन में इंटरेक्शन पैटर्न उनका कैसा हुआ है, ठीक है. अगर वो कोल्ड रहा है, अनसेटिस्फाइंग रहा है, उनका चाइल्डहुड, दीज इंडिविजुअल्स का चाइल्डहुड हैव ऑफन बीन कैरेक्टराइज्ड जैसे कि कोल्ड है या लैकिंग ऑफ एम्पैथी है या नर्चरिंग में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, तो वो वाले पर्सन्स, वो वाले चाइल्ड्स आगे जाके ये वाली पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं. ये साइकोसोशली पाया गया है, ठीक, कि इनके अगर लैक ऑफ एम्पैथी हुई होगी, नर्चरिंग में कोई प्रॉब्लम होगी या अर्ली इंटरेक्शन पैटर्न्स अच्छे नहीं हुए होंगे इन देयर चाइल्डहुड, सो दीज पर्सन्स में इन फ्यूचर डेवलप दिस सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी.
and a child brought up with this type of parenting may become the schizoid at the adult. So they it may have these sort of qualities in the things. Hope you got this one, the schizoid personality disorder. Now coming to the schizotypal personality disorder, it is very much interesting schizotypal personality disorder because it is also called as latent schizophrenia. Latent schizophrenia because their behavior, it is odd and eccentric, right, but not to the extent कि जितना स्कीज़ोफ्रेनिया में होता है. मतलब बिल्कुल लगता है हमें बिकॉज ऑफ इट्स क्लिनिकल फीचर्स कि ये क्लाइंट हमारा शीज़ोटाइपल पर्सनैलिटी वाला क्लाइंट जो है ये स्कीज़ोफ्रेनिया है, हैविंग द सेम ऑड एंड एसेंट्रिक बिहेवियर एंड it is the graver form pathological but less severe than the what is called as schizoid personality patterns. It may show all those clinical symptoms with associated with the schizophrenia but not to the extent टू दैट एक्सटेंट कि जितना स्कीज़ोफ्रेनिया में होता है, और उसकी जो लेंथ होती है, ड्यूरेशन होती है, साइंस एंड सिम्टम्स भी वो भी उतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी स्कीज़ोफ्रेनिया में हो जाती है. और स्टडीज़ ये भी इंडिकेट करते हैं कि जो ये शीज़ोटाइपल पर्सनालिटी है इट इज़ सीन इन 1 to 2% ऑफ द पॉपुलेशन, ये आ जाता है. नाउ coming to the clinical picture of the schizotypal personality disorders, these individuals they are aloof, बिल्कुल no feelings towards the other, isolated behavior होता है and apathetic, कुछ भी रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे, दे विल शो नो रेस्पॉन्स, नो वामथ टू द फीलिंग्स ऑफ द अदर, बिल्कुल भी नहीं अच्छे से रेस्पॉन्ड करेंगे. दे विल गो फॉर द मैजिकल थिंकिंग, ठीक, आइडियाज़ ऑफ रेफरेंस उनको होंगी, इल्यूजन्स होंगे, depersonalization, they will not be able to personalize themselves, उनको अपने आप के बारे में भी पता नहीं होगा. ये रहता है, ये सारा क्लिनिकल फीचर इनके शीज़ो व्हाट इज़ कॉल्ड एज शीज़ोटाइपल पर्सनालिटी वाले इसमें आ जाता है. या आप देख सकते हो कि इनमें ज़्यादातर सुपरस्टिशियसनेस आ जाती है, ठीक है ना. दे बिलीव इन क्लाइवलेंस मीन्स प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर, कि आगे क्या होने वाला है, इनको ऐसा लगता है ये वो बता सकते हैं. या सिक्स सेंस की बात करेंगे कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सब होगा. ये सारा चीज़ें क्लिनिकल पिक्चर ऑफ द शीज़ोटाइपल पर्सनैलिटी में आ जाता है. about what is called as their characteristics, क्या हो जाता है उनमें, and उनको क्या लगता है they can feel the others can feel their feelings, ठीक है ना. जब इनको depersonalization हुई, there is no boundary between them and the other personals, अपने आप की भी नहीं पता होता है, जिसकी वजह से उनको सीधे लगता है कि जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं फील कर रही हूँ, वो दूसरा पर्सन भी फील कर रहा होगा. Yes, I already told you, believe that the others can feel their feelings. Their speech pattern is sometimes very much bizarre, and the people with this type of disorder often cannot orient their thoughts logically. जो भी वो सोचेंगे वो orient ही नहीं कर पाते हैं अपने thoughts logically, and they become lost in the personal irrelevance, ठीक है ना. बिल्कुल भी वो जो भी उनका ये होता है पर्सनल थिंकिंग या थॉट्स होते हैं, बिल्कुल वेग पड़ जाते हैं, ठीक है ना. वो सब आ जाता है. दिस फीचर ऑफ देयर पर्सनैलिटी ओनली फर्दर alienates them to the others, बस और कुछ भी नहीं इनको जाता है. और अंडर स्ट्रेस, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, और अंडर स्ट्रेस वो क्या करते हैं, दे डिकम्पनसेट एंड डेमोन्स्ट्रेट द साइकोटिक सिम्टम्स. अगर उनको कोई भी पर्सनल स्ट्रेस आ गया, एनवायरमेंटल स्ट्रेस आ गया, उस टाइम पे वो साइकोटिक सिम्टम्स भी दिखा सकते हैं, जैसे कि डिल्यूजन्स ऑफ थॉट्स होंगे, हेलुसिनेशंस होंगे, या बिज़ार बिहेवियर्स होंगे. यूजुअली ब्रीफ ड्यूरेशन के लिए ही होते हैं ये सब, लेकिन वो ये चीज़ें दिखाएंगे. एंड दे विल ऑफन टॉक और गेस्चर टू देमसेल्व्स, अपने आप से ही बातें करेंगे, ठीक है ना. वो सब होगा, मतलब ऐसा लगेगा दे आर लिविंग इन देयर ओन वर्ल्ड.
उनका जो इफेक्ट है वो भी ब्लैंड ही होगा. सो दे विल ट्राई टू लिव इन देयर ओन वर्ल्ड. वो ये सारी चीज़ें उनमें हो सकती है. तो इसी वजह से ये क्या उसको बोलते हैं, ये वाला मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है विथ दैट ऑफ द स्कीज़ोफ्रेनिया. To the predisposing factors of this schizotypal personality disorder, this is seen in more in first degree biological relatives. बायोलॉजिकल रिलेटिव्स, अगर किसी का फर्स्ट बायोलॉजिकल रिलेटिव स्किज़ोफ्रेनिक है तो क्या इसको बोलते हैं वो वाला क्या इसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री बायोलॉजिकल रिलेटिव में आ जाता है वो with then among those with the general population. And this ये वाली जो डिजीज़ है, ये schizotypal personality disorders, it is now considered as a part of genetic spectrum of schizophrenia. और ये भी पाया गया है कि अगर कोई एनाटमिकल डेफिसिट होगा फॉर एग्जांपल इन द ब्रेन, उस वजह से भी ये वाली पर्सनालिटी डेवलप हो सकती है. या न्यूरो केमिकल डिसफंक्शन होगा, न्यूरोकेमिकली न्यूरो ट्रांसमीटर्स में कुछ डिफेक्ट होगा, वो भी राइज कर सकता है हमारा ये स्कीज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाली पर्सनालिटी, जिसमें उनको मिनिमल प्लेजर्स फील होंगे, पेन सेंसिबिलिटी कम रह सकती है, कॉग्निटिव फंक्शन इम्पेयर हो सकती है. ये सारा कुछ इसमें आ जाएगा अगर उनको न्यूरोकेमिकल डिसफंक्शन होगी. और ये भी पाया गया है दैट दीज बायोलॉजिकल इटियोलॉजी फैक्टर्स जो भी थे, दे सपोर्ट द क्लोज लिंक बिटवीन द स्कीज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड द स्कीज़ोफ्रेनिया. और इसी वजह से शायद ये हम शीज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हमने क्लासिफाई किए थे with the schizophrenia rather than with the personality disorders in ICD-10. मैं ये उधर ही था. एंड अर्ली फैमिली डायनामिक्स ये भी हो सकता है कि जो अगर द अर्ली फैमिली डायनामिक्स ऑफ दीज इंडिविजुअल्स देखा जाए विद दोज विद स्कीज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, दे मे हैव द कैरेक्टराइज्ड बाय इनडिफरेंसेस, इम्पैसिविटी या फॉर्मेलिटी विच मे लीड टू दिस टाइप ऑफ पैटर्न विद द पर्सनालिटी अफेक्ट डिसऑर्डर इन दैम, राइट. ये सब हो सकता है इसमें. नाउ coming to the third, that is the antisocial personality disorder. As the word will indicate indicates that क्या हो सकता है ये antisocial personality disorder persons socially irresponsible pattern of behavior दिखाते हैं. ये these persons, they are exploitative, they are and have the guiltless behavior. whatever they do, they don't bother about those things. और फिर वो गिल्ट भी फील नहीं करते हैं अगर उन्होंने कुछ गलत बिहेवियर भी दिखाया होगा. एंड दे विल जनरली डिसरिगार्ड द राइट्स ऑफ द अनदर. जब वो डिसरिगार्ड करेंगे राइट्स ऑफ अनदर, एंड मोर ओवर दीज इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, दूसरे इंडिविजुअल्स को एक्सप्लॉइट करते हैं फॉर देयर ओन बेनिफिट्स, मैनिपुलेट करते हैं फॉर देयर ओन बेनिफिट्स, उनसे काम लेते हैं. एंड दे आर नॉट guilty for that behavior as well. And these individuals have difficulty in sustaining the consistent employment. For example, job लग गया कहीं पे और किसी occupation में काम कर रहे हैं, so they are not able to develop a stable relationship. कैसे करेंगे वो stable relationship जब वो दूसरे को exploit ही करते हैं on regular basis for their own benefits और they manipulate others. so इसकी वजह से उनको बहुत difficult हो जाता है to sustain the consistent employment. एंड वो डेवलप भी नहीं कर सकते हैं स्टेबल रिलेशनशिप. और हम देख सकते हैं इट हैज़ द यूजुअली ऑनसेट चाइल्डहुड में होता है, बिफोर एटलीस्ट बिफोर द एज ऑफ 18 ईयर्स ये हो सकता है, जिसमें हम कंडक्ट डिसऑर्डर अगर बच्चे में देखा तो इन द लॉन्ग टर्म वो डेवलप हो सकता है इन द एंटीसोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में. कॉन्स्टेंट लैक ऑफ कॉन्फर्मिटी ऑफ द मेजर सोशल एंड रिलीजियस रूल, बिकॉज दे डोंट
abide the rules and regulations made by the society or the community or the family itself, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी conformity नहीं दिखाएंगे. वर्सटैलिटी होगी उनके पास, बट द क्रिमिनल वर्सटैलिटी, उनके पास अच्छा तरीका होगा, एंड दे विल हैव spectrum of the versatility but in the chemical criminal aspect. पोर इम्पल्स कंट्रोल, खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पाते होंगे. अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. जो भी वो करते हैं, एक तो वो गिल्टी नहीं होंगे और ऊपर से वो उस क्या उसको बोलते हैं अवॉइड ही करेंगे उस एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना. मैनिपुलेट करेंगे दूसरे को, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, अब्यूजिव हो सकते हैं वो दूसरों की तरफ. एंड दीज इंडिविजुअल्स मे ऑल्सो हैव द सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर्स इन एसोसिएशन. मैं वो ये सब्सटेंस अब्यूज़ कर सकते हैं. एंड दे रिक्वायर दिस, दे हैव द शैलो इमोशंस. अगर आप उनको कुछ बोलोगे भी, दे डू नॉट, दे हार्डली बॉदर, दे विल नॉट फील इट बाय देयर हार्ट. शैलोली इमोशनली वो इसको क्या इसको बोलते हैं फिर फील करते होंगे. एंड ये मैं कहना चाहूँगी, दिस एंटी सोशल पर्सनैलिटी बहुत ही ओल्डेस्ट टाइप है, इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड बेस्ट रिसर्च. बहुत सारी रिसर्चेस हुई है इस वाली पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स पे, एंड हैज़ बीन इंक्लूडेड इन ऑल द एडिशंस ऑफ योर DSM, दैट इज़ डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिक manual of mental health disorders. And this disorder is more common among socio-economic classes. अगर हम देखी जाएगी लोअर socio-economic classes में ये वाला disorder ज़्यादा पाया जाता है. particularly जो highly mobile होंगे, जो आए होंगे from the rural areas to the urban areas, वहाँ जाके अगर they are not in a good class, good socio-economic condition, तो ये क्या इसको बोलते हैं, ये arise हो सकता है antisocial personality disorder. And you in your ICD-10, this disorder is as written as the dissocial personality disorder. Hope you got the antisocial personality disorder. Thank you for being a part of this video, and I will continue in the third part inshallah next time. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.